Hello everyone, I am Dr. Parul Mehra, Head DME Media School, and I welcome you all to the first episode of DME Primar with Media Stalwarts. Well, this interactive series is designed to create a meaningful discourse between a budding and a leading media professionals of India. This series is incepted to bring a light for the students to understand behind the scene exposure and a valuable mentorship from the experts. आज हमारे साथ एक ऐसी ही खास पर्सनालिटी मौजूद हैं जिन्होंने मीडिया क्षेत्र में अपनी एक खास पहचान बनाई है. शी इज़ द वन हु इज़ नोन फॉर हर crisp reporting. On-screen media presence is extremely confident. She is a charismatic personality, and above all, she has a power of turning her simple bulletin into a meaningful narrative. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत P7 न्यूज़ चैनल जैसे चैनल से शुरू करी बतौर एक ट्रेनी एंकर के रूप में, और आज वो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के साथ जुड़ी हैं. बहुत ही कम समय में एक लंबा सफ़र तय करके उन्होंने मीडिया क्षेत्र में अपनी एक खास पहचान बनाई है. She is being associated as a senior primetime anchor with NDTV these days. एक ट्रेनी एंकर से लेकर एक बिग मीडिया प्रोफेशनल के तौर पे आज नज़र आना, इट इज़ ट्रूली कमेंडेबल. शी इज़ एपिटमी ऑफ ग्रेस, परफेक्शन, perseverance, hard work and growth. I want you all to welcome Miss Malika Malhotra with all of us today in Studio 62. Malika, welcome to Studio 62 in DME Primar with us. Thank you, ma'am. That's a beautiful introduction, and I don't even know if I'm living up to each word you said, but I'm extremely happy. It's such an honor and both a pleasure to be here. We are very happy and to have very you today. excited for this chat with you today. So, Malika, I would like to start from the beginning, from where you started this journey. आपकी ये जो करियर की शुरुआत है, जो जर्नलिज्म में आप आई, it was your love and passion or it just happened by accident? I think being a journalist or choosing journalism as my career path was never the plan. It was something that I wasn't planning. I just stumbled into it. And I think destiny played a big role. When I started my journey as a trainee anchor with P7 News, I was still not very sure. I mean, I was very curious. मैं newsroom के माहौल को जानना चाहती थी. I wanted to understand what goes into, you know, the making of news. कैसे कहानियाँ लोगों तक पहुँचती हैं. मेरे अंदर वो curiosity थी. But I think as I entered into this field, is the time when I realized that this is where I belong. So I think that curiosity took me here, and I was always very keen on knowing, you know, about understanding about the energy of newsroom and the responsibility of this job. लोगों तक सच्ची कहानियाँ पहुँचाना आसान काम नहीं है. तो I think also, you know, how you're able to connect with people is something that drew me into it. Journalism for me, I think it's not just an art. It's a responsibility. और जर्नलिस्ट बनना आसान नहीं है. जर्नलिज्म एज अ करियर पाथ इज़ नॉट ईजी, बट जैसे जैसे आप इससे जुड़ते जाते हैं, आप लोगों से मिलते जाते हैं, और आप जैसे जैसे एक कहानी करते हैं, एक कहानी से दूसरी कहानी, फिर तीसरी कहानी करते करते आप एक बेहतर जर्नलिस्ट बन पाते हैं, और आप इस फील्ड को समझ पाते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ पाते हैं, इसकी पावर को समझ पाते हैं, इसकी ज़रूरत को समझ पाते हैं. So I think this was never the plan for me, and as a student, I think हमारे साथ यहाँ भी बहुत सारे students मौजूद हैं, and I'm sure most of them are still not very clear about where their life will, you know, take them. जब हमसे ये पूछा जाता है, where do you see yourself in next 5 years, 10 years, हम बोल तो बहुत कुछ जाते हैं, but sometimes, you know, कभी-कभी life भी आपके लिए कुछ choices लेती है. So I think it's all about making the right choices, taking the right decisions at the right time. So that's what I did, so and that brought me here. It happened by accident, but then it became your love and passion. Yes, eventually it became a passion for me. It turned into a deep passion for me eventually. Wonderful. Because शुरुआत में इतनी समझ नहीं होती है आपको. आप जर्नलिज्म पढ़ते हैं, और जर्नलिज्म किताबों में पढ़ी नहीं जा सकती. मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है, I might be wrong. आप समझ सकते हैं, जैसे एक होता है ना, हर सब्जेक्ट का एक सिलेबस होता है. आप समझ सकते हैं कि what all goes into a news story. There's a headline, there's a punchline, there's a tagline, and then there's like the
mid part of it where you have like a lot of information and everything, उतना आप समझ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, कैमरे को कैसे देखना है, माइक कैसे लगाना है, कैसे बैठना है, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स एंड एवरीथिंग, ये सब आपको आपके इंस्टीट्यूट कॉलेज में पढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब तक आप फील्ड पर नहीं उतरते और आप वहाँ के चैलेंजेस को फेस नहीं करते, जब तक आप अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं सीखते, आपके सामने बहुत कुछ हो रहा हो सकता है, बट अगर मुझे उस चीज़ को एक्सप्रेस ही नहीं करना आता तो मैं एक जर्नलिस्ट नहीं बन सकती। Because when you are on field, there's a lot happening around you, and when you know there are a lot of people watching you, and there's a sense of responsibility कि जो मैं कहानी या जो मैं यहाँ से बता रही हूँ, it's like a draft that will remain, and that's a piece of information that has the power to change lives, that has the power to change perspectives, you know. So वो जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो पावर आती है उसको समझना, वो तभी हो सकता है जब आप एक प्रैक्टिकली उसको एक्सपीरियंस करते हैं, और जब आप एक्सपीरियंस करते हैं और इस चीज़ को करीब से देखते हैं, आई थिंक that's when you fall in love with journalism. Even though it's hard, it has its own challenges like every other career path. कोई भी I think 5 W's and 1 H क्लास में पढ़ाया जा सकता है, मगर जो उसकी implementation है, that is only possible when you are on the ground. Exactly, you have to feel the story, you have to live it, and you have to be extremely honest with it, because in the world of noise these days, in the world of filters, I think truth still prevails. Absolutely. Truth still matters, and we still need people who dare to tell the truth. So I think journalism में वो ताकत है जो दुनिया को ये दिखा सकती है कि दुनिया को अपने आप को किस तरह से देखना है। You can change the way the world sees itself. तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मैंने जब न्यूज़ रूम में एंटर किया, साथ में सीनियर जर्नलिस्ट को देखा वो किस तरह से काम करते हैं, द हसल बसल, और जो एक like you're on your toes all the time, आप कभी भी कहीं भी बैठे हो सकते हो, and if there's like a breaking news situation, you can be asked to like leave right now, अभी वहाँ पर पहुँचना है, अभी वहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए जाना है, या अभी तुरंत स्टूडियो भागो, ये बड़ी खबर आ गई है। So that adrenaline rush, that keeps me going, and that's how I fell in love with my job, and I truly love it. Quite inspiring. I was doing a research about you, Malika, and I found you are one of the journalists of India who is quite academically accomplished too. You have also attained your international journalism from Cardiff University, Wales. तो ये जो इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है या आप बाहर जाते हैं, वैसे तो मैंने जनरली देखा है जो लोग बाहर चले जाते हैं वो वापस अपने देश नहीं आते, बट यू हैव चोजन टू कम बैक टू योर ओन कंट्री टू सर्व योर नेशन, एंड ऑफ कोर्स यू आर इन सच अ वंडरफुल प्रोफेशन ऑल्सो. तो व्हाट डिड नॉट मेक यू स्टे देयर, एंड हाउ योर दिस international exposure is helping you, to mix or mingle with the Indian system? I think जब मैंने यहाँ पर initially when I started my academics in journalism, when I started my graduation, वो मेरे लिए एक ऐसा phase था, that was I think the foundation of where I was trying to understand the field, and I did not even know that eventually I'll have a career in the field of journalism, because there were a lot of students in my class who ended up doing choosing like different career paths. We were all journalism students at one point together in the same class, but कोई कहीं काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है. Not everyone made it to the industry. So कभी सोचा नहीं था मैंने वो. तो I think that was the choice. वही जो मैंने आपसे choices और decisions की बात करी, that was a choice that I made when I was already working. I was employed, I was making good money, I had a decent salary, and I was only 3 to 4 years old in the industry also. So not a big name, of course, and I was not doing any primetime show. And that's when I realized that there's so much that I can still learn about journalism. There is so much that I can still do, a lot of exposure. Because journalism में आप तभी excel कर सकते हैं जब आपके पास exposure है. Exposure is very important. आप एक कमरे में बैठकर चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लो, आप एक अच्छे पत्रकार नहीं बन सकते जब तक आप फील्ड पर नहीं जाओगे, दुनिया नहीं देखोगे. तो मैं दुनिया देखना चाहती थी, और मैंने उस समय मैं इंडिया टुडे में थी, तब एक चैनल होता था तेज, एंड आई वाज एन एंकर विद देम. सो आई स्पोक टू द एचआर देयर कि मुझे सबैटिकल मिल सकता है क्या. तो उन्होंने बोला दैट वी डोंट नीड इट. आई मीन आप हमारे लिए एंकरिंग कर रहे हैं, अगर आप ये मास्टर्स करके आएंगे तो हमें इससे कोई इट विल नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस टू योर प्रोफाइल, या ये हमारी रिक्वायरमेंट है नहीं है. तो वो सबैटिकल तो पॉसिबल नहीं है. अगर आपको
पढ़ने जाना है तो आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा. Oh. So that was a tough decision for me, and my parents and I, we were not on the same page when I was going to make this decision, and they were not very happy and they were very confused that why are you doing it? लोगों को नौकरी नहीं मिलती, तुम नौकरी छोड़कर बाहर पढ़ने जाना चाहती हो. तो मैंने उन्हें बताया कि नहीं, मेरे ऑफिस में बहुत सारे सीनियर्स हैं, उन्होंने कार्डिफ से पढ़ाई की है. Okay. And they So told me somebody stories. inspire you to Yes, there were a few senior journalists there who had done this similar course also. So उनसे बात करके मुझे लगा कि यार it could be nice, it could be like really interesting, और international exposure आपको बहुत बहुत मायनों में help करता है. It helps you shape your personality, how you walk, how you talk, how you see things. And you know, मैं यहाँ थी, जब मैं यहाँ पढ़ रही थी, तो मैं यहाँ का जो मीडिया इकोसिस्टम है उसको अंडरस्टैंड कर रही थी कि किस तरीके से होता है. बट जब आप बाहर जाते हो, it opens like a wider, opens a new lens for you. You see things from a different perspective. Even at Indian stories, मुझे एक उसमें एक अलग तरह का context, अलग तरह की neutrality, you know, how to empathize, because हर दुनिया के हर कोने में issues हैं, problems हैं, politics है, सब कुछ है. अब वो अपने issues को किस तरह से देखते हैं, आप उससे सीखते हैं. क्योंकि आप और मैं एक सेम काम कर सकते हैं, बट आपके करने का तरीका अलग है, मेरे करने का तरीका अलग है. हो सकता है मेरे तरीके से आप कुछ सीख ले और आपके तरीके से मैं कुछ सीख लूँ. It's the same with every field, and I think it's the same kind of experience and learning experience for me when I went abroad. वहाँ पर मेरी क्लास में कोई चाइना से है, कोई अफ्रीका से है, कोई जापान से है, कोई यूके से है, कोई यूएस से है. सो दैट डाइवर्सिटी, आई मीन, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म या इससे बेहतर माहौल क्या हो सकता है सीखने के लिए या अपने आप को और बेहतर करने के लिए. बिकॉज you learn so much, and like you're studying with a group of students who are from different parts of the world, and you know, the discussions that we used to have about new stories, how we used to like work upon our assignments and everything. It was like a great experience for me, and I think it really helped me shape my career and my overall personality. That's wonderful to hear that of course international exposure bring lots of change in, you know, you, and exposure makes you learn many things. आपने रिपोर्टिंग की अपनी बात करी, मैंने आपके बहुत सारे रिपोर्टिंग के एपिसोड्स देखे. In fact, I follow you also, and one thing I must tell you that you are totally out of the crowd of the other reporters and anchors, because I have seen in your reporting technique you always keep people first. बल्कि there's a classic example of your reporting which you have done during the Sindhu border farmer protest. I've seen that you were there with the farmers on, you know, ground for like 100 days, which is commendable. आज के ज़माने में जहाँ पे हम देखते हैं मीडिया में रिसर्च की तो बहुत प्रॉब्लम है, इधर उधर से खबर उठा के उसको रीराइट करके प्रेजेंट किया जाता है. एंड आई थिंक द रिपोर्टिंग इज मिजरेबली, यू नो, मिसिंग फ्रॉम द system. So I think that, and I think that's why there are more of inaccurate, you know, they don't check on facts much, और बहुत ही unfair सी stories देखने को मिलती हैं. But you know, your style is little different. You always keep people first. You try to be on a ground, try to be with them to understand. So I, along with my students, at least we are very keen to know that how was your experience there to be with the farmers and, you know, understanding their problem and situation. I think it was a turning point of my career, if I'd like to put it like that, because you know, some stories, they change you. I was really moved by this protest, because before a journalist, I'm a human. Wonderful. So when I saw all these farmers protesting there, and most of them were from Punjab, and I'm a Punjabi myself, so the connect was instant. So initially, I met a lot of farmer families there, and whenever I used to go there, वो मुझे तो नाश्ता करके आई है, nice. तो खा के आई है, अच्छा तुम आज भी रात तक रहोगी, तो they used to come and ask me कि कुछ खा लो पी लो. उन्होंने भी मुझे सिर्फ एक जर्नलिस्ट के तौर पर नहीं देखा कि पता नहीं माइक पर जाके हमारे लिए क्या बोलेगी. Mind boggling. I mean, you know, hearing something like this is, because you know, it's like कि आप जर्नलिस्ट हैं, आपका काम है फैक्ट्स को रिपोर्ट करना, आपका काम है स्टोरी बताना, लेकिन उस स्टोरी में ऑनेस्टी होनी चाहिए, उस स्टोरी में सच्चाई होनी चाहिए, एंड यू शुड बी एबल टू प्रेजेंट थिंग्स एज दे आर एंड नॉट चेंज और ट्विस्ट फैक्ट्स. आजकल सोशल मीडिया के दौर में आई एग्री, हमारे सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है.
we are literally struggling कि कोई भी माइक उठा के कुछ भी बोल देता है and it makes headlines, it becomes news, it becomes a story and reach social media की बहुत बढ़ गई है, but TV I think still and will always remain like a more credible medium of information, I would say. हम लोग बहुत डिस्कशन करते हैं इस बात पर कि टीवी का क्या फ्यूचर है, आगे का दौर डिजिटल है, बट मुझे ऐसा लगता है कि टीवी की क्रेडिबिलिटी आज भी है और हमेशा रहेगी। दूसरा ये जो आपने फार्मर्स प्रोटेस्ट का पूछा, जब इनिशियली मुझे वहाँ पर भेजा गया तो मैं सोच कर नहीं गई थी कि मुझे वहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना, बट वंस आई वाज देयर and when I witnessed it, when I saw everything happening there and it was such a big movement, मतलब आप देखिए उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना था, उसका सोशल इम्पैक्ट कितना था। बच्चा बच्चा इस बारे में बात कर रहा था कि ये फार्मर्स प्रोटेस्ट कब खत्म होगा। हर किसी के मन में सवाल था कि भाई किसानों की जो मांगे हैं वो पूरी क्यों नहीं हो पा रही है। अगर आप उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखेंगे तो वो बहुत मतलब डिबेटेबल था। बट मैंने जो एक जर्नलिस्ट के तौर पर वहाँ पर सीखा कि जर्नलिज्म करने के लिए आपको अपनी इंसानियत भूलने की ज़रूरत नहीं है। मैं वहाँ पर जाती थी तो अगर मुझे कोई अपनी कहानी बताता था कि बेटा हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, इवन इफ माई एडिटर वुड से कि नहीं यार दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वी कैन रन ऑन टीवी, तो मैंने कहती थी पर मैं फिर भी इनसे बात करूँगी। मैं आपको रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ, आपको चलाना है, उसको यूज़ करना है या नहीं करना है वो आपका एडिटोरियल कॉल है, बट एज ए जर्नलिस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी कहानी सुनने लायक है। So it's a goosebump, you have moved me today. Yeah. सो वहाँ पर इतने दिन मैंने बिताए और ऐसा नहीं कि हर दिन बहुत ही अच्छा था, कुछ बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी हुए थे वहाँ पर, बिकॉज यू नो व्हेन such a protest is happening at such a big level, तो उसमें filter नहीं रह जाता है। Anybody walks in, anybody you know claims to be a farmer and they could have their own agenda, they could be running a propaganda, कुछ भी किसी भी intention से कोई वहाँ पर आ सकता है। तो I did have such encounters with people who claimed to be farmers, which to my understanding I believe that they were not. So they misbehaved with us on the ground. They wanted us to go away because इसका जो protest का जो color था वो बदलता गया। शुरू में गया तो it was a very like you know बहुत एक silent और peaceful protest लग रहा था जिसको बहुत समर्थन मिल रहा था, बट धीरे धीरे बिकॉज हर तरह के लोग उसमें आने लगे, पॉलिटिक्स बहुत होने लगी, तो कुछ ऐसे नेगेटिव इंसिडेंट्स भी हुए जिससे आप कह सकते हो कि थोड़ा सा माहौल वहाँ पर बिगड़ता चला गया और जो लोगों के मन में फार्मर्स के लिए सिंपैथी थी वो थोड़ा थोड़ा गुस्से में बदलता गया। बिकॉज अल्टीमेटली आपको ये देखना होगा कि वो प्रोटेस्ट कहाँ कर रहे थे, सिंगू बॉर्डर पर कर रहे थे, जिससे जो वहाँ के आम लोग थे, जो वहाँ के लोकल्स थे, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उनके लिए रास्ते ब्लॉक हो गए थे, ट्रैफिक का इशू हो रहा था। वो धीरे धीरे थोड़ा सा वो प्रोटेस्ट बहुत बदलता है। तो मैंने उस प्रोटेस्ट का हर रंग देखा, हर रूप देखा। जब वो ऐसा प्रोटेस्ट था जब आपको फार्मर्स को टीवी पर देखकर रोना आ जा रहा था, या जब वो प्रोटेस्ट ऐसा बदला जब आपको गुस्सा आ रहा था कि ये कब उठेंगे। मैंने उसके हर चेंजिंग फेस को देखा और मैं उसका पार्ट रही हूँ और उसके हर पहलू को समझती रही हूँ और अपनी जर्नलिज्म और अपने काम के साथ ऑनेस्टी के साथ चलते रहना ऐसे माहौल में बहुत मुश्किल था। बट आई थिंक वही होता है ना, दैट सम थिंग्स दे मेक यू और दे ब्रेक यू। सो दिस स्टोरी इट एक्चुअली मेड मी, और मुझे ऐसा लगता है कि आई एम रियली प्राउड ऑफ माई जर्नी, जो मैंने वो 100 दिन वहाँ पर बिताए, और आगे भी उम्मीद करती हूँ कि ऐसे मौके मिलेंगे। We are also equally proud of you because जो बात आपने कही कि पत्रकार से पहले मैं एक इंसान हूँ, मुझे लगता है अगर ये फीलिंग सब में आ जाए तो कहीं ना कहीं जो ग्रास रूट लेवल की खबरें हैं वो लोगों तक बिल्कुल सही तरीके से पहुँचे। तो वंडरफुल एंड हैट्स ऑफ टू यू मल्लिका फॉर दिस। आप 2022 में एक बहुत ही अलग अंदाज पे दिखाई दी थी और आई थिंक यू वर देयर इन आज तक दैट टाइम, and people have seen you coming on a bullet and then you are driving all across India and reporting different I did that places. show in Gujarat and it was, believe me, very emancipating for all the women like us. एक वो liberal सी approach से जब एक महिला बुलेट पे सवार
सड़कों पे उतरती है, तो मुझे लगता है इससे एक मोटिवेशन मिलता है और महिलाओं को कि इस लिबरल अप्रोच से हम भी जी सकते हैं. एंड इफ़ अ रोल मॉडल लाइक यू फॉर योर यंगस्टर्स, so I think that was altogether a very different style of reporting. So that reporting which you have done, that was your own choice, or was that your channel demand to do something like this? I mean, I can't take credit for this because that was definitely not my idea. I mean, I of course, like I did tell them that I can ride a bullet, but then the show concept and everything that was being designed and planned by our editors only. So और ऐसा नहीं है कि मैं इकलौती एंकर हूँ जिसे आप सबने बुलेट पर देखा है. There are few more, few yes. more. पर फिर भी मलिका, ये कंडीशन तो है ना कि आपको बुलेट चलानी आनी चाहिए. Of course, Otherwise मतलब तो बुलेट गाड़ी सब कुछ मैंने ट्रैक्टर तक चलाया हुआ है. Wonderful. और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वही मैंने आपको बोला ना कि जब आप स्टोरी बताते हैं तो स्टोरी को फील करना और उस स्टोरी की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पिक करना बहुत ज़रूरी है. कि यार अगर आप पूरी कहानी बता दो लेकिन अगर आप उसका मेन किरदार ही भूल जाओ तो फिर उस स्टोरी का वो इम्पैक्ट नहीं रहता है. तो आई थिंक जब आप उस चीज़ को पूरा अच्छे से समझ लेते हो. अब जैसे बुलेट का कॉन्सेप्ट क्या था, बुलेट का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना था कि पहला कि एक लड़की बुलेट चला रही है, दूसरा एक पत्रकार भी है, तीसरा कि भाई वो तो गुजरात की गलियों में घूम रही है, लोकल लोगों से वहाँ पे बात कर रही है, जहाँ मन कर रहा है खड़े होके चाट खा रही है, पॉलिटिक्स पर भी बात कर रही है और वहाँ के जो आपके जो कैंडिडेट्स हैं उनसे सवाल भी कर रही है. तो मतलब एक एंकर के या एक लड़की के, एक महिला के एक अलग अलग रूप आप देख रहे हैं. सो आई थिंक वो उस शो का एक मुझे लगता है कोर एसेंस था कि भाई आज आप देखते हो कि बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं वो गमछा पहन के, अगर बिहार में हैं, यूपी में हैं, गमछा पहन करके जाते हैं और उन्हीं की बोली में बात करने लगते हैं. ऐसा तो नहीं है कि आप वहाँ से ही हैं या आप वहाँ के हर चीज़ को समझते हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश करते हैं ताकि जब आप किसी से सवाल पूछने जाएं तो उसको लगे कि ये कोई अपना है. तभी तो मैं आपसे अपने दिल की बात कहूँगी. मैं आपसे पूछने आई हूँ कि आपके मुद्दे क्या हैं, आप किन मुद्दों पर वोट देंगे, और मैं एकदम फैंसी गाड़ी से निकल कर और ब्लेजर सूट में पहन के जा रही हूँ. दे वोंट बी एबल टू टॉक टू मी, दे वोंट बी एबल टू कनेक्ट विद मी. तो वो लोगों के साथ कनेक्ट बनाने के लिए ये कुछ तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हम करते हैं. एंड आई थिंक बुलेट रिपोर्टर वाज वन ऑफ सच वेरी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स. और उसमें लड़कियों को भी बहुत एम्पावर्ड फील हुआ कि अरे यार ये बुलेट चला रही है तो हम भी तो चला सकते हैं, हमें भी ट्राई करना चाहिए. और मुझे लगता है कि आजकल के टाइम में लड़कियों के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं होनी चाहिए, ना ही लड़कियों को अपने आप को किसी से कम समझना चाहिए. और अगर आपको कोई रोके तो उसको कुछ बोलो भी नहीं, करके दिखाओ. बिकॉज अब बोल करके समझाने का भी मुझे लगता है वक्त नहीं है. अगर आपको लगता है इफ़ यू वांट टू डू समथिंग जस्ट गो फॉर इट. और मैंने जब मुझे पता चला कि इस तरीके के शो के लिए अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड. और उस समय जब मुझे ये शो बताया गया कि मुझे करना है, मुझे बुलेट चलाए शायद 4-5 साल हो गए थे कि मैं बुलेट पर बैठी भी थी. अंदर से मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रही थी. आई वाज रियली स्कैर्ड. और मेरे पैर पे आज भी कुछ स्कार्स हैं, कुछ इंजरीज के मार्क्स हैं जो मुझे बुलेट शो करते हुए लगी थी. बट मैंने वो किसी को बताई नहीं, किसी को दिखाई नहीं, और स्पेशली अपने बॉस को तो बिल्कुल भी नहीं कि वो मुझे कभी ये ना बोल दें कि अरे तुम्हें चोट लग गई है, तुम वापस आ जाओ. बिकॉज आई वांटेड टू डू इट. और मुझे लगा कि ये एक बहुत यूनिक एक्सपेरिमेंट है और बहुत अच्छा शो है जो लोगों तक अगर पहुंचेगा तो कुछ अच्छा मैसेज के साथ पहुंचेगा. एंड इट इज़ सर्विंग अ पर्पस. तो इसलिए मैंने उससे अपनी तरफ से पूरी कमिटमेंट के साथ किया. मुझे बुलेट नहीं भी आती थी. जो मेरे साथ कैमरा पर्सन थे, मैंने उन्हें जब हम वहाँ गुजरात पहुँचे, सो व्हेन आई गॉट माई बाइक, जब मुझे बुलेट मिली तो मैंने अपने कैमरामैन को बोला कि क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ, प्लीज़ किसी से कहिएगा नहीं. तो उन्होंने कहा बताओ. मैंने कहा मैं शूट स्टार्ट नहीं कर सकती, आई नीड एन आवर विद दिस बुलेट और आप मुझे हेल्प करो. मैंने लास्ट बहुत साल पहले चलाई थी तो आई एम नॉट श्योर कि मैं चला पाऊँगी या नहीं, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है. तो थैंक्स टू हिम
वही बात होती है कि आप जो टीवी पे देखते हो आपको दिख एक एंकर रहा होता है, रिपोर्टर रहा होता है, लेकिन उसके पीछे बहुत 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 टीम होती है। मेरे कैमरा पर्सन मेरे साथ थे, हमारे एक राइडर भी थे। जब हमें एक सिटी से दूसरी सिटी जाना होता था तो मैं इतना लंबा राइड करके तो जा नहीं सकती, तो वी हैड अ राइडर आल्सो, वी वर अ टीम ऑफ 5-6 पीपल, सो दे ऑल हेल्प्ड मी अलोंग एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ देम। तो उन्होंने मुझे बोला आप टेंशन मत लो, अगर आप गिरोगे भी तो हम किसी को बताएंगे नहीं। तो मैंने, और पहले 1-2 दिन मैं थोड़ा गिरी भी, बट धीरे धीरे आई पिक्ड इट अप। इट्स रियली इंस्पायरिंग। और मुझे लगता है वही मैंने कहा कि इट इज़ वेरी इमांसिपेटिंग फॉर ऑल द वुमेन। इस तरह का जब कोई रोल मॉडल, कोई इंस्पायरिंग फीमेल इस तरह का कुछ करती हैं तो इसका इम्पैक्ट तो समाज पे बहुत होता है। और मुझे लगता है दैट गिव्स यू अ सेंस ऑफ बीइंग लिटिल लिबरल, बिकॉज यू नो यू फील ओके नाउ आई ऑल्सो हैव दैट यू नो थिंग टू डू दैट फॉर माई लाइफ, इन माई लाइफ। और मलिका, यू हैव हैड अ वेरी वर्सेटाइल करियर। व्हेन आई वाज रीडिंग, आपने बहुत सारे बड़े न्यूज़ चैनल्स के साथ काम किया है। अगर हम बात करें तो इनमें से कोई भी छोटा चैनल नहीं है, यू नो, फ्रॉम जी टू आज तक, देन एबीपी न्यूज़, एंड नाउ यू आर इन एनडीटीवी। तो आई मीन एवरी चैनल हैव देयर ओन एडिटोरियल पॉलिसीज, दे हैव देयर ओन स्टाइल बुक, और सबका काम करने का तरीका बहुत अलग है और बहुत सारे प्रेशर्स भी होते हैं इसमें। तो आपने ये स्विच जो करे, इनफैक्ट आई वाज लुकिंग दैट देयर आर मेनी एंकर्स हु आर सस्टेनिंग विद वन यू नो चैनल फॉर years and years and years long. So I think that they are very stick and they know that okay, this is my editorial policy and I have to you know work like that. मगर आपका बहुत ही you know versatile career है, तो इसमें जब आप नए चैनल में जाती होंगी तो उस सिस्टम से अडेप्ट करना, उनकी पॉलिसीज़ को अडेप्ट करना, अपनी इंटेग्रिटी को मेंटेन करके रखना, मुझे लगता है काफ़ी चैलेंजिंग तो रहा होगा आपके लिए। एक्चुअली आई थिंक एट द बॉटम ऑफ इट एंड एट द कोर ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन इज जर्नलिज्म ओनली। राइट। सो मेरे लिए ये अडेप्टेबिलिटी वाज नेवर एन इशू, टू बी ऑनेस्ट। एंड कई बार हम लोग सोचते हैं कि व्हेन वी स्टिक टू लाइक से वन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इयर्स, people might look at you as you know like a loyal employee. I am just loyal to my job. Wonderful. I am loyal to myself. I am loyal to my growth. तो मुझे जहाँ लगता था कि मुझे ग्रोथ मिल रही है, जहाँ मुझे लगता था कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जहाँ मुझे लगता था कि मुझे ऐसे शोज़ मिल रहे हैं जो मेरे करियर को डिफ़ाइन करेंगे या मेरे नाम और पहचान बनाने में मेरी मदद करेंगे, मैं वहाँ जाऊँगी। बिकॉज मेरा कनेक्ट मेरे व्यूअर्स से है, मेरा कनेक्ट मेरे ऑडियंस से है, और जिस संस्था में आप काम करते हो वो सिर्फ एक पिलर का, एक सपोर्ट सिस्टम का काम करता है, वो आपको आगे बढ़ाने का, आपको मौके देने का काम करता है, बट अल्टीमेटली काम तो आपको करना है। तो आई थिंक the organization or the platform really doesn't matter. What you do is what has the most significance. So yes, I did change a lot of organizations, और I'm not even I think a decade old in the industry. मुझे शायद 10 साल भी पूरे नहीं हुए होंगे, बिकॉज मैंने बीच में अपना कार्डिफ के लिए जो ब्रेक लिया था, अगर उसको मिलाऊं तो फिर 10 साल हो जाते हैं, बट अगर वो हम 2 साल हटा दें तो मुझे करीब 8 साल हुए हैं। तो इस 8 साल में गॉड हैज़ बीन काइंड, आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं वही आपको जैसे शुरुआत हमने की थी कि समटाइम्स यू नो इट्स डेस्टिनी ऑल्सो। कुछ चीज़ें आपके पास खुद भी चल कर आ जाती हैं। कई बार होता है कि हमारे सामने रखा मौका भी हमें नहीं दिखता। कई बार होता है कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं, आप जो नहीं भी सोच रहे होते आपके साथ हो जाता है। और ये सारे मेरे ड्रीम चैनल्स थे, ये सब वो जगहें थी जहाँ पर कोई भी जर्नलिस्ट नौकरी पाने के लिए बहुत मेहनत करता होगा या कोशिश करता होगा, बट आई एम वेरी लकी कि मुझे ये मौके मिले। लेकिन जो स्विच करने के मेरे डिसीजन होते थे, यू नो लाइक मेकिंग द राइट मूव एट द राइट टाइम, एंड आई व्हेन आई लुक बैक, तो मुझे अपने किसी भी डिसीजन पे कोई पछतावा नहीं होता, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हर कदम मेरे लिए एक स्टेपिंग स्टोन की तरह काम किया। जब मैं एबीपी न्यूज़ में थी तो वहाँ पर मुझे उनके मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो नमस्ते भारत का चेहरा बनाया गया, वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। और उसके बाद जब मैं आज तक में गई तो मुझे वहाँ बुलेट रिपोर्टर करने का मौका मिला, वहाँ पे मैंने मॉर्निंग शोज़ करे, वहाँ पे मेरी एक अच्छी पहचान बनने लगी। फिर मैं जी न्यूज़ में गई तो जी न्यूज़ में मुझे और बेहतर मौके मिले, मैं प्राइम टाइम एंकर बनी, मैं 6 PM का शो वहाँ पर करने लगी। अब मैं यहाँ एनडीटीवी में आई हूँ तो मैं यहाँ पर 5 PM का शो करती हूँ। तो इट्स लाइक कि
आप जहाँ पर भी जाते हैं, आपको अगर मुझे अच्छे मौके मिल रहे हैं, मुझे अच्छी असाइनमेंट्स करने को मिल रही हैं, ऐसा काम करने को मिल रहा है जो मैं चाहती हूँ, मेरे इंटरेस्ट का है, और यू नो समथिंग दैट कैन ऐड वैल्यू टू माय करियर, माय ग्रोथ, तो मैंने हमेशा वही चीज़ पर ध्यान दिया है। चेंज इज रिक्वायर्ड एंड चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। लाइक बदलाव अगर आप करते हैं, इसमें भी कोई खराब चीज़ नहीं है कि अगर आप एक ही संस्था में बहुत सालों तक काम करते हैं, बिकॉज हो सकता है कि जो आपका पर्पस है वो वहीं सर्व कर पा रहे हो आप। बट कई बार क्या होता है कि हर इंडस्ट्री में कंपटीशन भी है, आपके साथ आपके सीनियर्स भी हैं, खबर तो एक ही है ना, कितने लोग एक ही चैनल से वो खबर बताने जा सकते हैं, तो कई बार किसी और को भी मौका मिल जाता है, कई बार आपके सीनियर्स चले जाते हैं, कई बार आपके कॉलीग्स को मौका मिल जाता है, तो वो एक अलग इशू है, वो एक, मैं उसको एक चैलेंज के तौर पर नहीं देखती। बट किसी एक संस्था में बहुत लंबे वक्त तक काम करना, वो भी मुझे ऐसा लगता है कि वो भी आपकी एक जर्नी का हिस्सा है, वो भी आपका एक डिसीजन है कि मुझे यही अच्छे मौके मिल रहे हैं। अगर मुझे एक ही यहाँ पर इस एक संस्था में रहते हुए अच्छे मौके मिल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि मैं अच्छा काम कर पा रही हूँ, तो मुझे चेंज की वो ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी, और अगर मेरे पास कोई मौका आएगा भी तो शायद मैं उसे बाद में एक्सप्लोर करूँगी। लेकिन अगर मुझे यहाँ लगता है कि मेरे लिए यहाँ से बेहतर वहाँ है या कुछ और बेहतर इंतज़ार कर रहा है मेरा, तो मैं ज़्यादा सोचती नहीं, आई जस्ट गो विद द फ्लो एंड उस समय में जो सही लगता है वो करती हूँ। Definitely. So, Malika, students of DME are our future, and definitely, you know, professionals like you are very inspiring, like a role model for all of them. कुछ चीज़ें हैं जो हम उन्हें बताते हैं कि आप पढ़िए, आप लिखिए, इट्स इम्पॉर्टेंट टू रीड न्यूज़पेपर, यू शुड बी अपडेटेड व्हाट इज़ गोइंग अराउंड यू, लिखना पढ़ना आना चाहिए आपको एटलीस्ट बेसिक, और कुछ स्किल्स के सेट्स हम उनके साथ काम करते हैं। आप काफ़ी समय से इंडस्ट्री में हैं, आपने ट्रांजिशंस भी देखे हैं इन 10 सालों में, तो कोई एक ऐसी स्किल सेट जो आपको लगता है पहले भी थी, आज भी है, और शायद वो आने वाले 5 सालों तक या 10 सालों तक एटलीस्ट वो आपको आनी चाहिए जब अगर आप यू आर चूजिंग टू कम इनटू दिस इंडस्ट्री? सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहती हूँ दैट जर्नलिज्म इज़ नॉट एन ईजी करियर पाथ. It will test your patience, your courage, and even your faith sometimes. But if you stay true to the reason why you started it in the first place, I'm sure it can give you things that maybe no other profession can. It can give you a sense of purpose, because every story you tell has, you know, the power to open minds, spark new conversations, shift perspectives, and bring the change that's needed in the world today. तो आप जर्नलिज्म तभी ऑप्ट करिए अगर आप क्यूरियस हैं, आपके दिमाग में ढेर सारे सवाल हैं, एंड यू नो हाउ टू पुट दैट आउट. सवाल सिर्फ पूछना इम्पॉर्टेंट नहीं है, किस लहजे में आप सवाल पूछ रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपको अपनी काइंडनेस, अपनी एम्पैथी, वो सब बनाए रखना है. सो इफ़ यू हैव ऑल दीज क्वालिटीज़ इन यू, तब तो आप जर्नलिज्म में जाइए. बट अगर आपको लगता है कि नहीं, आई एम नॉट रेडी फॉर इट येट, then you should maybe explore different career paths for yourself. Because, you know, आपने जो मुझसे skills set की बात करी, you know, the pen, the camera, the mic that we hold, they are not just tools, they are responsibility. तो आप जो काम कर रहे हैं या जो करने जा रहे हैं भविष्य में, उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत सिग्निफिकेंस है और रेलेवेंस है जो हमेशा रहेगी. तो पहले तो उसकी सीरियसनेस को आपको समझना होगा. और जो सबसे ज़रूरी स्किल सेट मेरी नज़र में है वो है टू बी एबल टू कम्युनिकेट. अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए. आई मीन, यू कांट बी अ शाई पर्सन एंड बी अ गुड जर्नलिस्ट एट द सेम टाइम, एंड यू हैव टू बी क्यूरियस. अगर आपके सामने कुछ हो रहा है, एंड इफ़ यू डोंट वांट इवन गो टू द बॉटम ऑफ इट कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसने किया है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके बाद कैसे हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं. तो अगर आपके मन में सवाल नहीं आते हैं, तो मुझे लगता है कि सवाल आना, सवाल पूछना, ये बहुत ज़रूरी है. और सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल सेट यही है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर कैसे काम करते हैं. यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ क्लियरली. और उसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर जर्नलिस्ट या हर टीवी एंकर को आप सुनते हैं तो उनके पास कोई बहुत शब्दकोश होता है, कोई भंडार होता है शब्दों का, या बहुत वो अगर होता है तो इट्स अ प्लस. वो तो अच्छा ही है किसी भी इंडिविजुअल के लिए कि आप जितना अपनी वोकैबुलरी, अपनी डिक्शन पे काम करें. बट जो एक बेसिक लहजा होता है कि एक दूसरे की, आपकी बात मुझे समझ आ जानी चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं, कुछ लोगों में वही लैक करता है सबसे ज़्यादा.
आप कहना कुछ चाहते हैं, सामने वाला इंसान कुछ समझ लेता है, तो आपको अपना जो फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है उस पर काम करना चाहिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना चाहिए। और लिखना पढ़ना तो आई मीन इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। आप जितना पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना नई चीज़ों के बारे में आप जानेंगे और सीखेंगे। Writing also is very important because I think for us journalists now, we have to maintain our profiles on social media also. Yes, yes. And social media is not always about making reels and videos and posting stuff. You have to sometimes, like, even if you post a video, you still have to write a caption. है ना? कैप्शन तो आपको फिर भी देना पड़ता है, क्योंकि तब तक आपका वीडियो कोई क्लिक नहीं करेगा जब तक उसको कैप्शन समझ में नहीं आएगा, या जब तक उसको कैप्शन इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। तो एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ यू हैव टू लर्न। लिख कर कैसे करना है, बोल कर कैसे करना है, ये दोनों चीज़ों पर आई थिंक इक्वली मेहनत करने की ज़रूरत है, इक्वली काम करने की ज़रूरत है। और आपके जो क्लासेस होते हैं, जो लेक्चर्स होते हैं, उसमें जो भी टीचर्स बताते हैं उस समय हमें इंटरेस्टिंग नहीं लगता, उस समय हमें लगता है कि ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है लेकिन उसकी अहमियत बाद में समझ में आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, पढ़ाई में हमें कुछ भी सिखाया जाता है, जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जो असाइनमेंट्स होते हैं, उनको बहुत सीरियसली लीजिए, ये आपको आगे बहुत हेल्प करेंगे। सो नो मल्लिका, इट वाज एक्चुअली अ वेरी इंस्पायरिंग चिट चैट। और आपके एक्सपीरियंसेस से एक चीज़ तो समझ में आई कि जर्नलिज्म एक प्रोफेशन नहीं है सिर्फ, इट्स लाइक एक जिम्मेदारी है जिसको खास ईमानदारी के साथ निभाया जाना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके आज हमारे एंड लास्ट में मैं यही कहूँगी दैट जर्नलिज्म की हम बात कर रहे हैं तो ट्रूथ स्टिल मैटर्स एंड सो डू दोज हु डेयर टू टेल इट, एंड वी नीड मोर ऑनेस्ट स्टोरी टेलर्स और यू नो लाइक लाइट बेयरर्स। तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि जो स्टूडेंट्स आज मेरे सामने बैठे हैं वो इसके हमारे लिए हमारे लाइट बेयरर्स बनेंगे और आगे चल के हमारे देश के अच्छे जर्नलिस्ट बनेंगे। आई रियली लुक फॉरवर्ड टू मे बी लाइक वर्किंग विद फ्यू ऑफ यू इन द फ्यूचर, सो विश यू ऑल द बेस्ट। सो लेट्स ओपन दिस सेशन फॉर क्वेश्चन आंसर। आप में से अगर किसी का कोई सवाल है तो हम उसे ले सकते हैं। ओके, माधव वांट्स टू आस्क समथिंग। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। हाय, गुड आफ्टरनून। मैम, आपकी जर्नी मैंने जितनी सुनी तो मेरा आंसर जो क्वेश्चन था वो ऑलरेडी हो गया, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपको आज स्क्रैच से दोबारा शुरू करना हो तो कोई ऐसा मूवमेंट होगा जो आप अलग तरीके से करोगे जो आपने पहले अपनी जर्नी में ना किया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखो मैंने ये बात बोली कि जिस मोमेंट में आपको जो सही लगे ना आप वो करो और करके भूल जाओ। आई मीन जब आप किसी चीज़ को बदल नहीं सकते हैं तो उसके बारे में सोचने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। मेरा लाइफ का एक फंडा है एरिया ऑफ कंसर्न, एरिया ऑफ कंट्रोल। तो मैं उस पर चलती हूँ। जो मेरे कंट्रोल में नहीं है मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, और जो मेरा एरिया ऑफ कंसर्न है जिस पर मैं काम कर सकती हूँ या मैं जिस चीज़ में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, जिसे बदल सकती हूँ, मैं सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करती हूँ। हेलो मैम, माय नेम इज़ ईशान बिसारिया और मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि डेली बेसिस पे न्यूज़ आती हैं और रिपोर्ट्स हर दिन नई ख़बरें आती हैं और वो लाइव होता है। सो ये जो ख़बर होती है, आप मतलब इसको अगर हम कुछ फंबल कर जाएं लाइव, वो भी ऑन एयर जा रहा है, तो वो संभाल कैसे सकते हैं, मतलब कैसे संभाल पाएंगे कोई? देखिए, कोई अगर आप फैक्चुअल मिस्टेक कर देते हैं तो हम ऑन एयर ही बोल देते हैं कि माफ़ कीजिएगा, या उस चीज़ को आप दोबारा से बोल देते हो विद द करेक्ट फिगर। तो आई थिंक टू अर्र इज़ ह्यूमन, लाइक गलतियाँ होती हैं। आप भी अगर टीवी देखेंगे तो आप समझेंगे अच्छा यार इससे गलती से निकल गया होगा, बट व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप उसी समय उसे करेक्ट कर दें, बिकॉज इफ़ इट गोज़ लाइव ऑन एयर लाइक दैट देन इट कैन बी एम्बैरेसिंग फॉर यू। और कई बार ऐसा होता है कि हम गलत बोल जाते हैं एंड एट दैट मोमेंट वी डोंट इवन रियलाइज कि हमसे कुछ गलत निकल गया, और आपकी बुलेटिन के बाद आपको पता चलता है। सो देयर इज नॉट मच दैट यू कैन डू अबाउट इट। तो उसके जो रेपरकशंस होंगे सम मिस्टेक्स दे जस्ट गो अननोटिस्ड, बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट कुछ गलतियाँ होती हैं जो ज़्यादा नोटिसेबल होती हैं, जो थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं, तो वो चली जाती हैं देन यू कैन ऑलवेज अपोलोजाइज फॉर इट। सो हेलो मैम, हाय, माय नेम इज़ रितिका। मैम, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि आपने तो इंटरनेशनल लेवल पे भी स्टडी मास्टर्स किया है और इंडिया से भी, तो दोनों जगह पे मीडिया में क्या डिफरेंस है?
लाइक इंडिया को क्या उन लोगों से अडेप्ट करना चाहिए? आई थिंक जो सनसनीखेज म्यूज़िक चलता है चैनल्स पे वो हम छोड़ सकते हैं, वो वहाँ नहीं चलता है। तो बस मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा सा सेंसेशनलिज्म आई थिंक हमारे यहाँ पे ज़्यादा है, और तो मैम दैट कैन बी अवॉइडेड, बट अगर व्यूअर्स को वही पसंद आ रहा है तो आप क्या वही करोगे? है, जो दिखता है वह बिकता है। हाँ। तो समस्या तो ये भी है। मैम मैंने आपके बारे में पढ़ा भी था, उसमें सिंधु बॉर्डर वाले जिसमें आपने बताया हमें अभी, मैंने पढ़ा भी था उसके बारे में। तो आपने 12-12 घंटे तक शूट किया है मैम, क्या आपको मतलब ऐसी कौन सी मोटिवेशन मिल रही थी? Like, जब आप क्या जर्नलिस्ट बनोगी, फील्ड पर रिपोर्टिंग करने जाओगी, तब मुझसे पूछना। वो अपने आप आता है। व्हेन यू लव योर जॉब, व्हेन यू आर कमिटेड टू योर वर्क, आपको किसी चीज़ की या किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है। Absolutely. आप अपने आप मोटिवेटेड रहते हैं, बिकॉज आपको लगता है कि मुझे ये मौका मिला है एंड आई हैव टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट। मुझे इस मौके को जो मुझे मिला है इसको भुनाना है, ताकि मेरे टैलेंट को लोग देख सकें, इनकी स्टोरी लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि अगर मैं थक गई तो इनकी बात कौन बताएगा? सो दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। सो वंस यू आर आउट देयर, किसी और के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है, इट जस्ट कम्स फ्रॉम विद इन। यू डू इट विद लाइक फुल कमिटमेंट एंड यू नो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Good afternoon, ma'am. My name is Shubhangini Singh. My question to you is, what's the most challenging story you have ever covered, and what do you learn from it? I think this one only. This was the most challenging for me, and learnings मैंने जैसे आपको मतलब I have already spoken about it. Learning यही होती है that you know how to maintain that balance of being a journalist and a human. आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि story, you know, like in the process of chasing the headline, you lose the truth. So मुझे ऐसा लगता है that you should always choose truth and not ऐसा urgency नहीं लानी चाहिए। अगर आपको कुछ दिख रहा है, try to you know get to the bottom of it, try to understand it and then present it. So वो चीज़ मैंने वहाँ पर सीखी कि जैसा दिख रहा है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ लोगों के सामने लाना इज़ आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट देन जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स एज इट इज़ कि देखिए यहाँ पर ये लोग आ गए, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। तो मेरे वो बोलने से उस फार्मर प्रोटेस्ट का कितना ख़राब इम्पैक्ट लोगों पर पड़ेगा कि देखो वहाँ पे वायलेंस हो रही है, बट अगर मैं उस सिचुएशन को समझूंगी कि यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व आ गए, फार्मर्स प्रोटेस्ट के बीच आ गए, फार्मर्स के बीच आ गए जो ऐसा कर रहे हैं, वो मेरा एक शब्द या दो शब्द उस पूरे कहानी के मतलब को, उसके मीनिंग को ही बदल देगा। तो देखने वाला समझेगा कि अच्छा हाँ, दीज आर ऑल नॉट फार्मर्स, ये कुछ लोग हैं जो आकर यहाँ पे बवाल कर रहे हैं। और अगर मैं बोलूँगी देखिए यहाँ पे बवाल हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखने वाले को तो लगेगा ना कि अरे यहाँ तो बहुत कुछ गलत हो रहा है। तो वो जो आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड लाइक बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन, वो मैंने सीखा कि आप उसको स्टोरी को अच्छे से समझ कर प्रेजेंट करो। बेशक 5 मिनट लेट हो जाओ, बेशक कोई दूसरा चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ पहले चला दे, लेकिन आप जब चलाओ तो अच्छे से चलाओ, ऑथेंटिक हो, क्रेडिबल हो। Thank you, Malika, for sparing your precious time out of this very busy schedule of journalist. I know that, and you have joined here in our very first episode of DME Primar. We are extremely thankful to you on behalf of Delhi Metropolitan Education. I'm so thankful to you that you have joined us. Thank you today. for having Thank you. me, and once again I wish you all the very best. And I hope that the series that you started with me, it's a huge success, and students can learn a lot from this. Thank you. तो ये थी आज हमारे साथ मिस मलिका मल्होत्रा। ऐसे ही हम अगले एपिसोड में एक नए लीडिंग मीडिया प्रोफेशनल के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए DME TV।